आपकी वालदा थी, वो किधर है बैठी हुई? आप हैं माँ जी? हाँ जी, की हो गया है? इन्हें माइक दे दीजिएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਬਲਬਾ ਖਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ? ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਨਖ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਆਂਦੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਂਦੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗਲਤ ਸ਼ੈ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਾਈ ਆਪ ਮਾਨਾ ਕਫਮ ਵਿਕਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਮਾਨਾ ਆਪ ਵਿਕਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ ਜੇ? ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੁਸਾ ਮਦ ਦਮ ਸਾਬਰੇ ਵਲੀ ਮੀਰਾ ਮੌਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਖੋਲੂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਛੜਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਏ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਹਾਏ ਵੇ ਮਨ ਮੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਖੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਲਾ ਆਪ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਆਪ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ, ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ 3 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਛੜਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, ਬਸ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। तो सूरत रहमान भी मैं 7 दिन सुन ਲਈ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਦਾ ਘਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 3 ਭਾਈ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਰੱਬ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ? ਤਦੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਜੇ? ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਸ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਹੀ ਸਨ। ਗੈਰ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ? ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਘੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੰਡੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੇ? 2 ਬੇਟੇ। 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬੈਰੀਨ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੌ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ? ਮਾਮਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰ ਫੰਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਸੂ 2, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ? ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ? ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ। ਸੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਸਬੀਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣ। ਇਹ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪੇ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਅਲ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਤੇ
ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੂ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਬਿਮਾਰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ 7 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਦਿਆ ਮੁਝੇ, ਬਲੱਡੀ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਆਪਣਾ, ਫੇਫੜਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਛੜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਛੁਟਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਪਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਮੰਨਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿੱਟਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰੋਨ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਾਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਪੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਨਾ ਡਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 6 ਵਾਸਤੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੱਤ ਲਿਖੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਤਮੀਜ਼ਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਆਓ। ਚਲੇ ਅੱਲਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਮਾਈ ਦੁਆ ਚੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਫਾਤ ਆਖਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਢਾਣੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮੁਤਾਜ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕਵਾ ਕਰੇ ਨਾ तो देंदा है। असी मैं खुद अजमाया है। बेशक माशाल्लाह। ऐसी ये दुआ करा दी है अम्मा जी ने, जे तुहानू सारे नू समझ होए इन्हां सारे दी दुआ करो। आमीन। सब वक्त अल्लाह खैर करे, इस मुल्क ते भी खैर करे।
ਇਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। बैठे हैं। ठीक है। अच्छा जी, इनके बेटे को दीजिएगा माइक। दुआ की है ना सारे वास्ते, दिलों दुआ करो, बल्कि सारे लिए करो ना करो, मेरे लिए करो। ठीक, अल्लाह खैर करे। मैं आप गुनाहगार जिहा बंदा जी, तुसी दो जी जवाद साहब को दें। जी जवाद साहब, अंग्रेजी में बताइएगा वैसे डॉक्टरों का क्या डायग्नोसिस है? पैंक्रियाटिक टेल सीए जी 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 सीए जी ये उनका कंफर्म है डायग्नोसिस? नहीं, बायोप्सी की तरफ अब नहीं गए। अच्छा, बायोप्सी नहीं की लेकिन वो स्कैन वगैरह में आ गया है? हाँ जी, हाँ जी, ट्यूमर है? जी जी। अच्छा, तो जो है वो इस एज में उन्होंने रिकमेंड किया कि फ्रंट लाइन तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन सिंस आगे जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन भी बनती है, टारगेटेड भी या फिर अदरवाइज कोई इम्यूनोथेरेपी वगैरह, वो भी वो कह रहे हैं कि उसकी एफिकेसी शायद इतनी इस्टेब्लिश नहीं है इस एज में। वो इस एज में इनके लिए नहीं। इन्हें आपने सूरह रहमान 7 दिन सुनवाई है? जी बिल्कुल। और वो दुआ करके पानी भी पी रही हैं? जी। असल में ये खुद चलती फिरती दुआ है, और वो आपने मेरे ख्याल उनकी काफ़ी खिदमत की है, तो आपकी वो लॉटरी निकालना चाह रही हैं, तो अगर आप बीमार शिमार बन गए ने कि तुसी और खिदमत करो। जी जी। तो ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। वो बस फिर मामा की दुआ को निकल जाती है, जो निकल जाती है वो दुआ होती है। जी जी। बहरहाल, तो आपको सूरह रहमान का किसने आप एक तो हमारा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, और एक है टर्शरी हेल्थ केयर जहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब बैठते हैं। जी जी जी। वो है एक। आप कुछ लिखी जा रहे थे कि मैं टर्शरी केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे कुछ समझ उस जी नहीं, महकमे की नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, फॉर्मली मैं डीजी एजुकेशन रह चुका हूँ जी, डायरेक्टर डीजी भी हैं आप? जी रह चुका हूँ, अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल आखिरी मेरी जो पोस्टिंग थी वो ये बस अभी नहीं, खोटे सिक्के चले हुए हैं जी इनकी दुआओं से। खोटे हो या सच्चे हो, डीजी ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਡੀਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਉਹੀ ਡੀਜੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਜੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੀਚੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। जी जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। अली जान साहब के साथ रह के कोई 1.5-2 साल ये जो आपके पीजीज ने अक्रॉस 46 टर्शरी केयर हॉस्पिटल, उनका स्टाइपेंड ऑनलाइन किया अभी। डॉक्टरों की ये रोजी रोटी जो थी, जी जी, ये बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं। जी जी वही ना? जी जी, वो 1.5 अरब रुपया पर मंथ डिस्बर्समेंट मेरे पास रही है। 1.5 अरब रुपया डॉक्टर ही खा जाते हैं? जी ऐसे ही। इन्ना स्पेशलिस्ट बना के की करोगे? नहीं जी, स्पेशलिस्ट तो बहुत सारे, कमी वास्कुलर सर्जन आपके पास नहीं है। 2 बच्चे हमारे फैमिली में चले गए, तो फिर अली जान साहब को हमने कहा कि सर ये देखें, कोई इस तरह से कहानी मांड ना किया करें, ये हमारी फैमिलियों से बच्चे चले गए हैं 2, कितने दिन को वास्कुलर सर्जन नहीं मिला। वास्कुलर सर्जन नहीं, वो बाहर से लोग आते नहीं हैं। जी जी। और जो थोड़े बहुत हैं वो फिर हार्ट सर्जरी और वास्कुलर सर्जरी, वो सेंटर होना चाहिए, हर चीज़ पूरी, बहुत कुछ चाहिए होता है। जी जी जी। और एक बदकिस्मती है हमारी कि जो कोई बाहर से अगर सीख भी आता है, अव्वल तो आता नहीं है, आ जाए तो फिर सिखाता नहीं है जी, exactly। और सीखने वाले भी कम हैं। आगे से आप सिखाना भी चाहें, कहीं सीखने का जज्बा भी बड़ा कम है। ये तो मैं लाइटर नोट पे कुछ बातें कर रहा था, लेकिन हकीकत ऐसे है। तो अली जान साहब तो चले गए मेरे ख्याल, अब ट्रांसफ़र हो गए खुद, या OSD बन गए, काम करें WHO की तरफ चले गए हैं। आजकल तो मेरे ख्याल अजमत साहब हैं शायद सेक्रेटरी। मैनू उमूमन ना नहीं पता होंगे, चले जाते हैं तो पता लगते हैं। तो अच्छा, माशाल्लाह। तो
आपको सूरा रहमान का किसने मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਐਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਦੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੂਦ ਭਾਈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਹਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ PhD ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ तो आप ही टीवी ਦੇ ਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਹਿਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ पता नहीं की मतलब उन्होंने वो आप सूरा रहमान का किसने बता दिया तो मेरा किने दस दिता फर्स्ट टाइम तो बड़े भाई साहब ने बताया बहरैन से अच्छा तो काफ़ी कोई 6-7 साल पहले की बात है अच्छा उस टाइम दुनिया कम जानती थी आपको वो कोविड के दिनों में मैं लाइव जी सामने मुझे ये प्री कोविड पीरियड था जी मैं तो नीवा हो के निकलूँ सा लेकिन वो कोविड के दिनों में फ्रंट पे आना पड़ गया जी जी बस ड्यूटियाँ ना जी अल्लाह ताला जहाँ जिससे जो काम चाहे ले ले वो किसी ने पोस्ट लिखी थी फेसबुक पे खाना काबा की तस्वीर थी उसमें खाली खाना काबा था और साथ वेटिकन की तस्वीर थी वो भी खाली था गंगा जमुना जहाँ से शुरू होते हैं सरस्वती शायद कहते हैं वो भी खाली था इसी तरह कोई और मजहबी जगह थी दुनिया में जो सबके लिए किसी के लिए मुकद्दस है वो 4-5 पिक्चर्स लगा के तो एक पोस्ट थी किसी एथिस्ट ने लिखी हुई थी कि कहाँ गए काबे वाले उन्हें कहो ना कि जमजम पिलाएं और कोरोना भगाएं जमजम से धो लें और नमाज़ पढ़ें इकट्ठे और ये गंगा जमुना सरस्वती वालों को कहो कि गंगा जल से अब ठीक करें और वेटिकन वालों को कहो कि होली वाटर ज़रा छिड़के ना तो इस तरह पोस्ट लिखी हुई थी उसके नीचे हमारे उस वक़्त सारों को मसला तो पड़ा हुआ था तो वो दूसरे मुजाहिदीन भी जो कीबोर्ड मुजाहिदीन होते हैं जी वो भी उस पोस्ट के नीचे मेरा तो ख्याल था कि नीचे मुसलमान पहुंच गए उनके तेरी माँ दी तेरी भैन दी सब चल रही होएगी और भगवान वाले भगवान की तरफ से गालियाँ दे रहे होंगे वो लेकिन वो नीचे दूसरी डिस्कशन शुरू हुई थी और वो वाकई बड़े एक तरीके से वो इस चीज़ को क्वेश्चन को रेज़ किया जा रहा था तो यंग जनरेशन जो भी उसमें हिस्सा ले रही थी मैं देख रहा था कि वो रिलीजन पे बात करने वाले भी डिफेंसिव और थोड़ा उनका माजरत खाना सा अंदाज था फिर मुझे बस ये अल्लाह ने ख्याल डाला कि मुझे अब फ्रंट पे आके कहना चाहिए मैंने आई थिंक फरवरी में इंग्लिश वीडियो की थी एक ये सारी दुनिया के ICUs मैंने ये बात कही थी कि अनकरीब दुनिया में वेंटिलेटर्स शॉर्ट हो जाएंगे या बहुत महंगे हो जाएंगे और दुनिया उन्हें काबू करने के चक्कर में पड़ जाएगी तो इस बग की जो मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ लिटरेचर मैं ट्रांसलेट कर नहीं सकता था जो थोड़ी बहुत मुझे उस वक्त इन्फॉर्मेशन मिली क्योंकि चाइना बाहर इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं रहा था अगर याद हो उनके 2019 के बिल्कुल एंड में उनके उस शहर में ये वबा फैली तो सही थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि हुआ क्या उन्होंने किया क्या एंड रिज़ल्ट क्या निकला तो दुनिया में जहाँ से भी जनवरी फरवरी में केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वो सारे डॉक्टर्स एक ही शोर कर रहे थे कि वेंटिलेटर पे डालने के बावजूद मरीज़ मरता है बड़ी मिजरेबल हालत में मरता है और किसी पैरामीटर पे नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा मुझे याद है एज ए डॉक्टर तो मैं चूँकि खुद ICU स्पेशलिस्ट था तो मैंने उस वक्त वो पढ़ी होगी फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़ी होगी लाइव जो मैंने की हुई है वो रिकॉर्डिंग मैंने इंग्लिश में करवाई थी कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को मैं कह रहा हूँ कि इस पे वेंटिलेटर्स जो हैं ये आम वेंटिलेशन स्ट्रेटजी इस पे नहीं चलेगी और इसके ऊपर एक तो खुद डॉक्टर को भी डर पड़ा होगा कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए क्रॉस लेकिन इस मरीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये अगर वेंटिलेटर पे चला गया तो सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे तो वेंटिलेटर अवॉइड ही किया जाए ये मेरे वर्ड्स थे उस वक्त और वेंटिलेटरों के पीछे भागने की बजाय ये क्वारंटाइन और जो आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैं उन पे जोर दिया जाए और सरकार का वो जो हुक्म है कि अगर कहीं वबा फैल जाए तो फिर वहाँ से भागो मत और अगर खबर आए कि फलां जगह वबा फैली है तो वहाँ जाओ मत एक तो क्वारंटाइन की जाए और मुसलमानों के लिए मैसेज ये है कि जो डरेगा वो मरेगा तो मुसलमान वैसे ही ये स्ट्रेटजी रखें कि जहाँ है वहाँ मत जाएं और अगर हो गई है तो फिरे मत और दूसरों को ना दें लेकिन एक बात याद रखें कि ये भी उन्हीं की हदीस है कि किसी ने उन्हें कहा मक्का के दिनों में कि वो बीमारी आ गई है ऊँटों की
किसी ने दूसरों को कहा कि अपने अपने ऊँट लेके पहाड़ों पे चलें, वो हैंड फुट शायद फुट एंड माउथ डिजीज़ शायद उसे कहते हैं, मुंह खुर बीमारी या कोई वबा थी जिसमें पूरे पूरे रेवड़ मर जाते हैं। एक को होती है फिर सारे रेवड़ मर जाते हैं जानवर। वो मक्का में किसी जानवर को हो गई कुछ को, तो फिर लोग पहाड़ों पे डिफरेंट जगह पे डिस्टेंट पे चले जाते थे अपने अपने जानवर लेके ताकि उनके भी ना हो। तो सरकार द्वारा ने बैठे बैठे फरमाया कि कोई ज़रूरत नहीं भागने की। हुक्म तो वही था उनका कि भागो ना यहाँ से, भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई वबाई मर्ज़ नहीं होता। अब ये अजीब बात थी। तो शायद किसी साहबी ने, शायद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने थोड़ी देर बाद कहा कि वैसे हम शुरू से सुनते हैं कि वबाई मर्ज़ तो लगता भी है एक दूसरे से, वो आप और अल्लाह बेहतर जानते हैं, आप कह रहे हैं तो नहीं होता होगा, लेकिन देखते तो हैं कि एक देश से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लगता है और गांव के गांव मर जाते हैं। ताउन उस वक़्त भी होता था। तो आपने फरमाया कि वो जिसको पहली बार होती है वो क्यों होती है। तो उस हदीस के ऊपर भी असल में किसी ने बड़ी बकवास की हुई थी फेसबुक के ऊपर, बात की समझ नहीं होती। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि इलामा इकबाल का शेर किसी ने मुझे भेजा हुआ था कि जी इकबाल तो कह रहे हैं, तो मजहबी जमातों के ऊपर इकबाल ने जोर दिया कि सियासत में होनी चाहिए। मैं लिख रहा था कि भाई साहब ये बात कोई उल्टा कर दिया आपने, इस्लाम में तो जमातों की जगह ही नहीं है, वो अब बाकी आपकी मर्ज़ी है। वो सरकार की बात जो मुझे समझ आ रही थी एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, वो ये कह रहे थे कि यार जिसको पहली बार, मुसलमानों के लिए जो ईमान रखने वाले हैं उसके ऊपर, उनके लिए ये इशारा था कि तुम मौत से कहाँ भागोगे, अब अगर होनी है तो यहीं होनी है, आ गई है तो आ गई है। तो जिसको पहली बार हुई है आखिर उसको कहाँ से लगी है, उससे आगे तो स्प्रेड हुई है, उसको कहाँ से लगी है। इसका मतलब है कि फाइनल हुक्म अल्लाह का है, और जब अल्लाह शुरू कर देता है कहीं से उसने शुरू करना होता है। जो मर्जी आप सोचते रहें, बाकी तो फिर काबू आते जा रहे हैं ना, उसमें भी उसकी सिलेक्शन होती है, ये उसका हुक्म होता है। तो एहतियात का हुक्म है। बाकी आपका ईमान यही है कि अगर फैल गई है तो ना भागे ना, वहाँ से मौत से आप भाग नहीं सकते, तो उस पर तवक्कल रखें। एक तो फैलेगी नहीं, दूसरे शहरों में नहीं जाएगी, और दूसरा उस पर तवक्कल के साथ जब आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होंगे और उसको याद करेंगे, जिनकी इम्यूनिटी कम है वो तो फंस जाएंगे, ईमान कमज़ोर वाले, और बाकियों की पॉजिटिविटी, जैसे डॉक्टर्स और नर्सेज उस वक्त उसी जगह पे काम कर रहे थे उन्हीं हॉस्पिटल्स में। और आपको तो पता होगा कि शुरू में बिल्कुल किसी किस्म के IPPs हमारे पास कुछ था ही नहीं जी। मैं पहला पेशेंट जो हमारा आया था, मुझे याद है चाइनीज़ 2 लड़के थे, तो उनके कमरे में जा ही कोई नहीं रहा था। तो हमारे हॉस्पिटल में एक स्टाफ हैं, वो इन्फेक्शन कंट्रोल की अकेली स्टाफ हैं। तो मैं गया, हमारा इमरजेंसी यूनिट भी हमारा ही था उस दिन, तो जाना भी था, तो कोई जूनियर सीनियर कोई जा नहीं रहा था, मीडिया से बहुत खौफ था कोविड का। तो वो दोनों चाइनीज़ का ये नहीं पता था उन्हें है या नहीं, खांसी कर रहे थे, टेस्ट कोई नहीं था, तो उनके कमरे में जाने में कोई तैयार नहीं था। पता चला जी 3 दिन हो गए हैं उनके कमरे में जा भी कोई नहीं रहा, और खाना बाहर रख देते हैं। तो वो भी आराम से बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट से उन्हें पकड़ के लाए हुए हैं। आई वॉज द फर्स्ट वन, मैं उनके कमरे में एंटर हुआ। वो मुझे नर्स ने काफ़ी मना किया, और उसके पास कोई पुराना पड़ा था IPP, तो वो पूरा, मैं तो समझा कि खलाई जहाज से कहीं उतरी है ये, लेकिन उसने वो पूरा पहना हुआ और मुझे कहने लगी कि सर ये, और डेफिनेटली हमने पढ़ा होता है, लेकिन उस वक्त अचानक जब एक नई चीज़ आती है, जैसे डेंगू आया था, तो आपका नॉलेज भी फ्रेश नहीं होता। तो वो मुझे मास्क कहती रही कि सर आइडली तो N95 होना चाहिए, तो सर्जिकल मास्क ही है और फलां, खुद उसने लगाया हुआ, तो मेरे पास एक ही था और ये वो, तो उसने पूरा मुझे डराया कि अंदर ना जाएं। मुझे ये था कि यार वो नॉन मुस्लिम है, हमने पकड़ के भी अंदर बंद कर दिए हैं, वो कहेंगे कि यार ये मतलब ये क्या इलाज, हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, या बाद में करेंगे, बात तो करनी है, देखते हैं उन्हें। दूसरा ये नहीं कि मेरा कोई ईमान बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन यही था मेरा कि बहरहाल वो इंसान है और हमारे मुल्क में मेहमान हैं, अब आ गए हैं तो देखना तो है। और अपने बच्चों को भी ये शो करना था, जो मेरे जूनियर डॉक्टर्स थे, जो डर के नहीं जा रहे थे कि नहीं मैं जाता हूँ, कुछ नहीं होता। तो मैं एंटर हुआ, उनसे मिला, देखा उन्हें, मुझे वो सिम्टम्स ही नहीं लगे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हो गए, वो चले गए, उन्हें कुछ भी नहीं था। रखा हमने उन्हें कि शायद 10-15 दिन मेहमान। उसके बाद बहरहाल बड़ी तेज़ी से फैला,
अमेरिका में, इंडिया से खबरें आना, मार्च तक तो, मिड ऑफ मार्च तक तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो तब मैंने ये लाइव करना शुरू किया था, और वो पहली वीडियो तो थी कि वेंटिलेटर्स के पीछे ना भागें, क्वारंटाइन और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लें। तो दूसरी फिर मैंने लाइव करनी शुरू की थी, तो उसमें मैंने लाइव इंग्लिश उर्दू में बात करता था कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, चैलेंज नहीं है, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप आईसीयूज़ में, वार्ड्स में ये लगाएं, और चाहे एक वार्ड में लगाएं और एक में ना लगाएं जो आपके कोविड के पेशेंट्स हैं। अभी तो कोई इलाज नहीं है और कोई वैक्सीन नहीं है और कोई टेस्ट नहीं है, तो आप कंपैरेटिव रिजल्ट्स विद इन 7 डेज़ आपको मिलेंगे। तो मैं बड़े धड़ल्ले से कह रहा था। फिर एक कारी साहब ने मुझे कहा कि आप कर रहे हैं तो आप उन्हें ये भी कहें कि अजानें दें, इन्होंने यूरोप में अजान मना कर दी है, तो इन्हें कहें कि अजानें भी दें। तो मैंने 1-2 वीडियोस में वो भी कहा। वो पता नहीं किसने वो आइडिया दिया, बहरहाल यूरोप में अजानें शुरू हो गई। स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पे कानून है कि अजान नहीं दे सकते, उन्होंने रिक्वेस्टें कर करके जर्मनी वालों ने स्पीकरों पे अजानें दिलवाई। वो काफ़ी रिज़ल्ट्स ज़बरदस्त थे, दुनिया को खुदा याद आया था। फिर अचानक हमारे एक बहुत बड़े दाढ़ी वाले पीएचडी डॉक्टर साहब भी वीडियो पे आए और उन्होंने कहा जी कि मैं कसम खाना तो इन्ने लाख पाउंड दे देंगा। तो मलका बरतानिया ने भी यहो ही वो क्या था, सना मक्की का काफा पी लिया है, ठीक है। तो मेरे इर्द गिर्द ये भी जितने सारे रोज़ पूछते थे, दुआ सेशन तो नहीं होता था, फ़ोन पे ही, वो लाइव पे ही चलता था या फ़ोनों पे, ये सारे भी दौड़ गए सना मक्की के पीछे। तो वो मैं पूछता ही रह गया, सना खान तकदीस मशरिक कहाँ है, ठीक है। वो सना खान भी सारे साने सना मक्की के पीछे गए, तो गोरिया जाना छड़ दिया, उन्हें कहना तो आप दोबार नहीं का। तो बहरहाल फिर पाकिस्तान में रमज़ान शरीफ के एंड पे बड़ी शदीद वबा थी, और मुझे याद है कि 17 जून को मेरा लाइव सेशन था। तो उसमें मेरे दिल ने कहा कि इंशाल्लाह 22 जून दुनिया का वो सबसे लंबा दिन होता है, छोटा दिन टर्न ओवर होता है। मेरा ख्याल था कि मदीना मुनव्वरा के दरवाजे अगर खुल गए तो रहमत शुरू हो जाएगी। तो दरवाजे खुल गए थे 22 से, अल्लाह ने खैर किया। उस चक्कर में मैं ज़रा मशहूर ज़्यादा हो गया। मजाक में भी लोगों ने नीचे लिखा होता था, पागल है, ओए ओए पढ़िया लिखा जाहल, हज़रत कोविड दी रहमत, करोना रहमतुल्लाह दी शान गुस्ताखी कर रहा है, वैक्सीन के बगैर कहता मरीज़ ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने करम किया और लोगों ने ये देखे रिज़ल्ट्स। तो जिस तरह आप तो अब कहीं से सुन के आए हैं, जी जी, उस वक़्त बड़े बड़े पढ़े लिखे फ़िरौन भी और बीमार भी, बिलियंस के मालिक गरीब जो थे, वो भी उस वक़्त फिर कहते थे कि वो डॉक्टर साहब वो जो आपकी सूरत रहमान है वो कैसे सुननी है। मैं कहता यार मेरी नहीं, सुननी ऐसे है। तो बहरहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसी तरह समझ आता है कि वापस तो उसी के पास जाना पड़ता है, हैं हम उसी के, और उसी के पास जाना पड़ता है। तो माँ जी जो बातें कर रही हैं आज, इसमें मेरा ख्याल है 10% भी ये ईमान हमारे पास नहीं है, हमारी सोच ये नहीं है। हालांकि वो बड़ी सादी, सिंपल, स्ट्रेट, सच्ची बात कर रही हैं, लेकिन हम इन बातों को मान के भी अंदर से हम भागे फिर भी रहे होते हैं अपने वसाइल के पीछे। किसी बड़े ऑफिसर ने रात को कुछ अर्सा पहले मुझे फ़ोन किया कि जी अटैक होने लगा है, हमारी खबर है, और दुआ कीजिएगा। मैं इधर ही दुआ सेशन में बैठा हुआ, वो ताज़ा खुद शिफायाब हुए थे किसी चीज़ से, तो उनका ज़रा ईमान थोड़ा ज़्यादा था। वो किसी फ़ोन से बार बार फ़ोन आई जा रहा था, मैं उठ गया, उधर गया तो मुझे कहने लगे कि जी उधर अफ़गानिस्तान की तरफ तो हमने पंगा ले लिया है, तो इधर से इंडिया शायद हमें करने लगा है, तो खुदा न खास्ता कोई मेजर मिसहैप हो सकता है, आप इस वक्त बैठे हैं, दुआ कराएं। वैसे तो हमारे पास एटम बम है, तो वो फलाना बंदा भी आपके पास आ रहा है, तो उसको आप कहें कि पहले चला दे। मैंने कहा अगर तो आपने अल्लाह से दुआ करनी है तो अल्लाह ने अपने एटम बम ना सुनाए, ठीक है। ये एटम बम के ऊपर अगर तुम्हारा है ना एतबार शितबार, तो अल्लाह के ने कहना पहले चला लो,
फिर मेरे को आ जाओ, ठीक है। जे कम बन गया चंगी गल है, तुसी एडमा मैडमा मैडमा पढ़ी जाओ, ठीक है। तो नहीं तो पुत्र फिर ना गल बनी तो फिर आ जाओ, फिर तो आना ही है। वो वसाइल पे भरोसा नहीं करना होता, छोटी सी बात है, लेकिन बात असल यही है कि मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे एटम बम पे करता है भरोसा। छोटी सी बात है जो इकबाल कह गया हुआ है, लेकिन बात यही है। वो अल्लाह हम सारों को कम से कम मुसलमान कर ले, फिर मोमिन तो इन्हीं टेस्टों में से अगर गुजरता है तो फिर अल्लाह ईमान की दौलत से भी सरफराज करता है। वो कहता है कि मत कहो कि हम ईमान लाए, बस ये कहो कि हम इस्लाम लाए, सलामती ही हो जाए तो बड़ी गल है। ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों से गुजरा भी नहीं है, अभी तो तुम्हें पहलों की तरह टेस्ट भी नहीं किया, तो ये आजमाइश आ जाती है। माँ जी, बीमारियां शुमारियां भी आजमाइश होंदियां ने नेक लोगों दियां, एक जिंदगी का हिस्सा है। उतू बंदा आप ही दुआ कर लेंदा है कि या अल्लाह हुण तू बुला भी लै, मेरा ग्रीन कार्ड कदों आएगा। वो फिर अल्लाह करीम कहता है कि अच्छा मेरे तो भी पाई जाती है, ठीक है। घर दे एवं दौड़ा लाई फिरदे ने। वो छोटी भैन सियाल को दौड़ आ गई कि नहीं नहीं मेरी बाजी ना कुछ होवे, डॉक्टर साहब इहो जिहियां गल्लां ना करो, असीं दुआ कराउण आए हैं तो असीं नहीं बाजी नूं छेती ठीक करो, ठीक है। तो बाजी जिहड़ी है उहने अट्टियां सट्टियां होर पासे लाइयां ने कि या अल्लाह बस ठीक है, ठीक है, अल्लाह शिफा दे। दुआ करते हैं जी, आंखें बंद कर लें सारे, अपने अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाएं, जो आपके कपड़ों से भी ज़्यादा करीब है, आपकी कमीज से भी ज़्यादा करीब, आपके अंदर आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब है। आंखें बंद करने को इसीलिए कहते हैं कि ध्यान एक लम्हे को आपका उसकी तरफ हो जाए। खुली आंखों से भी कर सकते हैं तो कर लें। अपने आप को अल्लाह के आगे पेश करें, दिल साफ करके, सबको माफ़ करके, बल्कि दुआ दे के कि या अल्लाह सब पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। खुद को अल्लाह के आगे पेश कर दें, ऐसे ही गंदे मंदे गुनाहों समेत, बड़े से बड़े गुनाह ले जाएं साथ। किसी के लिए आपके दिल में नफरत, गुस्सा, गिला, शिकवा, शिकायत ना हो। पूरे प्यार से, वो इतना प्यारा है और इतना प्यार करता है हमसे, और हर पुकारने वाले को सुनता है, देख भी रहा है, उसे पता है हम कितने के शर्मिंदा हैं, गुनाहगार तो हैं ही ये सारे, लेकिन इन चीज़ों से वो बेनियाज है। हाँ, बंदे नहीं आपस में एक दूसरे को छोड़ रहे होते, तो आप बंदों को छोड़ दें अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मखलूक को आप माफ़ कर दें। जो आपको नहीं माफ़ कर रहे उन्हें अल्लाह उनके दिलों में फिर रहम डाल देगा। आप अल्लाह के रूबरू हैं और नूर की बारिश ही बारिश है, प्यार है, अल्लाह का प्यार, रहम है, करम है। आपके मसले मसाइल, आपकी परेशानियां बहुत छोटी हैं, मेरा रब बहुत बड़ा है और वो किसी को नहीं मुश्किल में डालता। ये हमारी अपनी बदबख्तियाँ हैं, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारी अपनी अना है, हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ हैं। हम खुद फंसे होते हैं, लेकिन वो ऐसा शान बेनियाजी का मालिक, वो फिर भी हमें उसमें से निकालता है। किसी की सांस बंद नहीं करता, किसी की ऑक्सीजन बंद नहीं करता, किसी को बदनाम नहीं करता, बल्कि पर्दे डालता है। उसकी रहमत की बारिश है, आप हैं और अल्लाह है। अपने दिल के कानों से सुनो, महसूस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الرحمن علم القرآن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल लें।
ये 20 मिनट की किरात है। इसको सुबह दोपहर शाम पास आधा गिलास पानी रख के आंखें बंद करके सुनना है। उस अल्लाह के रूबरू पेश होकर जो रहमान है, रहीम है, करीम है। खुद को ज़ीरो कर देना है, उसके आगे हथियार डाल देने हैं और उसके सिवा फिर किसी को नहीं देखना है। हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, दोबारा आंखें बंद करें और अपने दिल में ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर जितने प्यार और खुलूस से 3 बार अल्लाह 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 अपने दिल में कह सकते हैं, प्यार से कहना है। आंखें बंद रखनी है और वो पानी भी पी जाना है। पानी ख़त्म हो जाए तो आंखें खोल देनी है। बंद आँखों से पानी पीना है ताकि ध्यान आखिर तक उधरी हो। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। जिस को शिफा होती जाए वो आगे मखलूक खुदा का भला करता जाए। किसी को भी ये तरीका ख़ुद बता दें, मेरी तरफ ना भेजें, ना किसी को पीर बाबा मानने की ज़रूरत है, ना कहीं इजाज़त लेने की ज़रूरत है। या आप कोई भी जो ठीक होता जाए वो आगे बताता जाए, जो अपनी खुशी से आगे बता सकता है। नेक बद, अच्छा बुरा कोई हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, शिफा के तौर पे, तरीक़ा शिफा के तौर पे कुरान करीम की सूरा को सुनना है और फिर 3 बार अल्लाह अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पीना है। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके माँ बाप सुनेंगे, क्योंकि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप ही बीमार होते हैं जो नाबालिग बच्चे हैं। उनके माँ बाप ही सुनेंगे, माँ बाप ही पानी पिएंगे 3 बार अल्लाह कह के। माँ बाप ठीक होते जाएंगे, बच्चा ठीक होता जाएगा। आपस की नफ़रतें, हसद, कीने, बुग़्ज़ ख़त्म करके उस अल्लाह के आगे अगर आप पेश हो जाएंगे। ऐसे बच्चे मौजूद हैं, आज भी ज़िंदा हैं, जो पैदाइशी तौर पे दिल के वैल बंद हैं, सुराख है बड़ा। डॉक्टर्स कई CPR करने के बाद घर वालों को कह रहे हैं कि अब हम वेंटिलेटर ऑफ करने लगे हैं। माँ बाप ने 7 दिन सुन लिया, आज बच्चा भी ज़िंदा स्कूल जा रहा है। तो ये नहीं है मैसेज के बैसियत डॉक्टर के, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स बनाने बंद कर दें या अस्पताल बंद कर दें। मैं खुद अस्पताल में पढ़ा भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन वो बीमारियाँ या वो सिचुएशंस जहाँ एलोपैथी भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकती, कोई इलाज भी नहीं है, डॉक्टर्स खुद जवाब दे रहे हैं, वहाँ पर इसे एक तरीका इलाज के तौर पे आपने अल्लाह के रूबरू पेश होकर सुनना है। अब ये गैमा रेज इमिट हो रही हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे हो रही हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो हीलिंग कैसे होती है। ये साइंस रिसर्च बाद में करती रहेगी। साउंड हीलिंग आ गई है, बड़े लेवल पे इलाज उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी है। अमेरिका में म्यूज़िक पे भी रिसर्च हो रही है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स भी उन्हें मिलना शुरू हो गए हैं। और बाबा जी तो फसलों को सुनवा गए थे, जानवरों को। ये जो है DVM कॉलेज वाले, ये एनिमल हस्बेंड्री वाले, उन्होंने तजर्बे कर लिए थे। तो फसलों की महकमा ज़राअत ने सारे पूरे पंजाब में खुद चॉकिंग कर दी थी कि जहाँ पे भी आप खादें डालने की बजाय अगर आपके पास नहीं है या बीमारी नहीं कंट्रोल हो रही तो अपने खेत के पास ऊंची आवाज़ में सूरह रहमान 7 दिन लगाएं। फसल भी ज़बरदस्त हुई थी। लेकिन सूरह रहमान को एक मंत्र के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। उस फ़कीर की रम्ज़ थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आई थी, या जो मेरे सामने रिज़ल्ट्स आते गए, या मैंने देखा, मैंने तो बीमारी के लिए बताई और लोगों ने बाद में मुझे फ़ीडबैक दिया कि उनकी सोच बदली है, उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो रही है, उनके घरों में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं, आपस में पुराने कज़िये ख़त्म हो गए हैं, घर में सुकून हो गया, महल्ले में सुकून हो गया, या रिश्तेदारों में सुकून हो गया, फसलों में भी बरकत हुई। वो अलहदा बात है कि इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है, बड़ी जल्दी फिर से शैतान और नफ्स के पीछे भागता है, फिर घाटे का सौदा करता है। लेकिन वो रहमान है, वो माफ़ करता है। वो इंसानों की आपस की नफ़रतें होती हैं, हम फिर फंस जाते हैं। उससे बचने के लिए ये है कि आप खुद आगे बताते रहते हैं तो कुछ खुदा याद रहता है,
कुछ अपना हाल याद रहता है, बंदा ज़रा कम ही जालिम रहता है। बताने का मकसद भी ये होता है, आपने कोई पार्टी नहीं बना लेनी, कोई कल्ट नहीं जनरेट करना। मकसद यही है कि ये पैगाम शिफा आज ये पूरी दुनिया में मकबूल है, लोग खुद कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम्स मुझे फ़ोन करते हैं, अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी है जहाँ भी बैठे हुए हैं। कल सर्विसेज में एक लड़का मेरे साथ भागा आ रहा था, मैं राउंड ख़त्म कर लिया, मुझे कहते हैं मेरी बेटी का डायलिसिस हो रहा है और अब्बू का भी हो रहा है। तो मैं कहा बेटा उन्हें सूरह रहमान सुनाए? कहते मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, आपने सुनाए और 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें। बेटी 7 साल की थी, मैं कहा वो आप दोनों ने करना है। वो कहते गॉड कह लूँ? मैं कहा चल यार गॉड कह लें, प्यार ना कहीं, बनाने वाला तो सबका एक है। मैं कहा तुमने अपने बनाने वाले को पुकारना है, जिस किसी ने तुम्हें बनाया पैदा किया है उसको पुकार लें। नाम तूने जो भी उसका रखा हुआ है उसे प्यार से पुकार लें। मैं तस्वीर उस बच्ची की दिखा नहीं सकता, वो खुद बाद में करेंगे जी। एक फेसबुक पे अलबत्ता अपलोड उन्होंने कर दी हुई थी, आप लोगों ने मुझे भी भेजी थी। वो मेरी वार्ड में ही दाखिल थी, स्टीवन जॉनसन की। आंखों तक की उसकी दवाई का रिएक्शन हुआ था, पूरी जिल्द उड़ गई उसकी और आंखें भी सारी इन्वॉल्व थी। जिल्द वार्ड वालों ने तो रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा माई तरफ से तो जवाब अब ये मर जाएगी। आज उसे हमने छुट्टी दी है, माशाल्लाह अल्लाह ने उसे शिफा दी है। शिफा अल्लाह ने देनी है। पानी दे दें, जिन्होंने दुआ पानी के साथ कर लें। अम्मा जी आएंगी तो इन्हें पानी दे दीजिएगा, ये भी पानी के साथ दुआ कर लें। दूसरी जो काकी पिछली बार मिले बगैर चली गई थी, जल्दी इन्हें माइक दीजिएगा। माँ जी तुसी दुआ की थी अखा बंद करके 3 बारी अल्लाह अली? पानी का जायका कैसा लगा जे? कौड़ा लगा है कि मीठा लगा है कि जमजम लगा है? बेहतर लगा है। चलो माशाल्लाह। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला